Hello, today in this video we'll discuss about blockchain technology. We'll discuss what is blockchain technology, how blockchain technology works, who invented blockchain technology. Okay, so let's start with the definition or the brief introduction. A blockchain is a secure digital distributed ledger that uses public or private signature technology to validate and record transactions in near real time. तो बेसिकली ब्लॉकचेन केवल एक टेक्नोलॉजी है, केवल एक तरीका है, एक बही खाते की तरह जिसमें हम सिक्योरली सारे ट्रांजेक्शन्स को, जो भी ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर किया जा रहा है, उन नेटवर्क के अंदर होने वाले सारे ट्रांजेक्शन्स को हम जिस तरह से एक लेजर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, उसी तरह से डिजिटली स्टोर करने के लिए हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज़ करते हैं। ये सिग्नेचर्स पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, और रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे मेनली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ मोर सिक्योर एंड मोर रैपिड, मोर फास्टर देन अदर banking technologies. Okay, and blockchain is originally developed for international payments. अगर हम बात करें कि क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को स्टार्टिंग में सतोशी नाकामोटो नाम के डेवलपर ने यूज़ किया था बिटकॉइन को डेवलप करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए। बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी होती है जो कि ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ की जा सकती है। आजकल हर फील्ड में टुडे इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ, लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल नाउ टेस्ला एंड पेपल एंड अदर बिग कंपनीज और web applications are taking payments in the form of bitcoin and also paying someone in the form of bitcoins. So the market of bitcoins, these kind of cryptocurrencies increasing day by day, and the technology behind these cryptocurrencies is blockchain technology. Okay, now let's understand what is blockchain technology and how it works. So blockchain technology adds new transactions in the form of blocks. So we can say there are many of people available in the network, and if one person is doing transaction to someone other, then these kind of transaction details are to be stored in the form of a block in the blockchain technology, and every block that is containing the details about sender, receiver and the transactioned money, the this every block contains the transaction details and security stamp also. This security stamp is in the form of a hash code. This hash code may be of 256 bit, that is very secure to crack. It cannot be cracked easily. It takes very long time to crack this kind of hash code of 256 bit. So it is secure, and this block stores the hash of previous block also. So we can say blockchain technology के अंदर कई सारे ट्रांजेक्शन्स का ब्लॉक की एक चेन बन जाती है, और इस ब्लॉक्स की चेन में हर एक ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक का हैश कोड को स्टोर करता है, अपने हैश कोड को स्टोर करता है, और जो डाटा है, ट्रांजेक्शन्स की डिटेल है, उसको स्टोर करता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दिस इज़ मेड ऑफ multiple blocks
and every block contain the transaction details, hash code, security code, and the hash code of previous block. So this is the basic structure of blockchain technology. Now let's see some examples of blockchain technology in real life. कहाँ कहाँ हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा है या फिर आगे किया जा सकता है. सो बेसिकली रिड्यूसिंग वाटर फ्रॉड्स, हम देखते हैं कि यूएसए के अंदर वाटर फ्रॉड्स से बचने के लिए अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है. सेकंड, हेल्थ केयर के अंदर सिक्योरली पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है. इट कैन बी easy for doctors to identify to store their patients information securely. And blockchain technology is also important in financial services, e-commerce websites, e-commerce technology, retail, real estate, banking for secure transactions etc. आज की डेट में अगर हम बात करें तो कई बैंक्स है जो कि कई फॉरेन बैंक्स है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इथेरियम और बिटकॉइन को अलाउ कर रही है पेमेंट्स के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए. रियल एस्टेट में भी धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो बेस्ड है बिटकॉइंस, उनका यूज बढ़ रहा है. इसके अलावा फाइनेंस, ई कॉमर्स में भी हम डिजिटली प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए या फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए बिटकॉइंस का इस यूज़ बढ़ता जा रहा है. सो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन रियल टाइम. सो हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क? यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क करती है. तो वी कैन से, अच्छा, ब्लॉकचेन इज जस्ट ओनली ए मेथड हियर. ब्लॉकचेन के हेल्प से बिटकॉइंस, इथेरियम, इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज को डेवलप किया गया है और भी नई क्रिप्टो करेंसीज को डेवलप किया जा सकता है ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके. तो ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो नई क्रिप्टो करेंसीज या नए ब्लॉकचेन मेथड की हेल्प से नए एक सिस्टम को जनरेट कर सकते हैं जो कि पेमेंट्स के ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है. तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि एक नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर कई सारे पीपल अवेलेबल है, पर्सन्स अवेलेबल है. अब उनके बीच में एक लेजर है जो कि सभी के ट्रांजैक्शंस की डिटेल रखता है. और जो मेन ओरिजिनल लेजर है उसके अंदर अगर कोई भी पर्सन किसी पर्सन को कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसका डिटेल इसके अंदर स्टोर हो जाएगी. सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, कितनी मनी का ट्रांजैक्शन हुआ और किस पर्पज के लिए हुआ है, और उसका एक ब्लॉक बन जाएगा मेन ओरिजिनल लेजर के अंदर. और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि जो ओरिजिनल लेजर है उसके अंदर हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक ब्लॉक बनेगा और हर एक ब्लॉक डाटा को स्टोर करेगा, ट्रांजैक्शन डिटेल्स को, और उस डाटा के साथ में एक हैश कोड को भी स्टोर करेगा. हैश कोड सिक्योरिटी मैकेनिज्म एन्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है. जनरली इसमें 256 बिट का एन्क्रिप्शन यूज़ किया जाता है फॉर द हैश कोड से. और जो पिछला ट्रांजैक्शन, पिछला ब्लॉक इस पर्सन से रिलेटेड हुआ है उसकी भी यहाँ पे हैश कोड को ये स्टोर करके रखता है हर एक ब्लॉक के अंदर. तो ये जो कंप्लीट ओरिजिनल लेजर होता है ब्लॉकचेन की खास बात ये है कि हर एक पर्सन जो कि नेटवर्क के अंदर है उसको इसकी कॉपी सप्लाई की जाती है. ओरिजिनल लेजर की कॉपी हर एक पर्सन के पास होती है ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो सके. अगर ओरिजिनल लेजर के अंदर कोई भी चेंज होता है तो हर उस पर्सन को जो कि उस नेटवर्क के अंदर अवेलेबल है को भी पता चल जाएगा कि हाँ ओरिजिनल लेजर के अंदर कोई चेंज हुआ है. ठीक है. अब तक जैसे कि हम एग्जांपल लें कि अभी तक अगर हमें इंडिया से कोई मनी अगर ट्रांसफ़र करनी है यूएस के अंदर या यूएस
से जो डॉलर्स में मनी होती है उसको इंडिया के अंदर लेना होता है, तो बीच में बैंक्स होती है जो कि कन्वर्जन करती है, इंडियन रुपी को कन्वर्ट करती है डॉलर में, और बीच में अपनी कुछ फ़ीस भी लेती है। तो इस तरह के कन्वर्जन से बचने के लिए, मिडल वेयर से बचने के लिए यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टली ये इंडियन रुपी को डॉलर्स में कन्वर्ट नहीं करेगी। इट डायरेक्टली वर्क्स फ्रॉम बिटकॉइन टू बिटकॉइन, फ्रॉम एथेरियम टू एथेरियम, एंड एनी क्रिप्टो करेंसी टू डायरेक्ट in the form of that cryptocurrency. So blockchain technology is faster than the traditional methods of banking. And basically we can say Bitcoin, Ethereum or entire blockchain concept is basically developed or invented for the international payments. Okay, now peer-to-peer transactions and every peer or node. Now peer-to-peer transactions का मतलब होता है कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर सकता है, एंड एवरी पीयर या एवरी नोड कंटेंट्स द कॉपी ऑफ ओरिजिनल लेजर। ठीक है, सभी नोड्स या सभी पीयर्स के पास, पीपल के पास अपनी ओरिजिनल लेजर की भी एक कॉपी होती है। If one person sends money to person B, person A is sending money to person B, then a new block created with details and transaction to all the peer copies, and after some time लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है किसी भी एक ट्रांजेक्शन की डिटेल्स को अपडेट होने में। तो बेसिकली अगर कोई भी किसी को ट्रांजेक्शन कर रहा है तो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि डायरेक्टली हम उसको ओरिजिनल लेजर के अंदर अपडेट नहीं कर सकते। वो पहले जो अदर नेटवर्क के अंदर पीपल है उन सभी के पास वो कॉपी अपडेट होगा, और अगर वेरीफाई हो जाता है तो वेरीफाई होने के बाद ही उसको ओरिजिनल लेजर के अंदर अपडेट किया जाएगा। और ये लगभग 10 मिनट का समय ले सकता है फॉर एवरी न्यू ब्लॉक, एंड दिस ब्लॉक इज़ एडेड टू द ओरिजिनली ब्लॉकचेन परमानेंटली। तभी ये परमानेंटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो ओरिजिनल लेजर है उसके अंदर ऐड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक हैश कोड यूज़ करते हैं जनरली 256 बिट एन्क्रिप्शन का, और हर एक ब्लॉक के साथ ये ऐड किया जाता है उसके एक यूनिक आइडेंटिफायर की तरह। ये बताता है कि हाँ ये ब्लॉक का एक यूनिक आइडेंटिफायर है। अगर हमको हैश कोड पता है तो हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन के इस वाले ब्लॉक के बारे में बात हो रही है। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर की तरह वर्क करता है। ठीक है, नाउ व्हेन समवन वांट्स टू चेंज, अब अगर हम बात करते हैं कि अगर इस तरह के ब्लॉकचेन कंसेप्ट के अंदर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ब्लॉक्स बने हुए हैं, अगर कोई भी बाद में चाहे तो किसी ब्लॉक को चेंज करके फ्रॉड कर सकता है। तो यही यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी है कि ये बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसके चांसेस बहुत रेयर है, ना के बराबर है, इम्पॉसिबल सा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई नया ब्लॉक अपडेट हो जाता है तो अपडेट होने के बाद में अगर जो ओरिजिनल ब्लॉकचेन, ओरिजिनल लेजर जो है, अगर उसके अंदर किसी भी ब्लॉक का हैश, ब्लॉक की डिटेल्स को अगर चेंज किया जाता है तो साथ में उसका हैश कोड भी चेंज हो जाएगा। और होता क्या है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हर एक ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक का हैश को भी स्टोर करके रखता है। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन डिटेल को अगर चेंज कर दिया जाता है तो उसके बाद वाले सारे जो ब्लॉक्स है उनके अंदर पिछले ब्लॉक का हैश सही से स्टोर नहीं होगा, क्योंकि इस ब्लॉक का हैश बदल चुका होगा। तो इस तरह से क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, और ऑल द ब्लॉक्स आफ्टर दिस damaged block will become useless and will identify quickly this fraud. So and अगर हम बोले कि अगर एक ब्लॉक जो चेंज किया है उसका हैश कोड चेंज हुआ तो उसके बाद के सारे हैशेस को भी हम चेंज कर देंगे, अपडेट कर देंगे, ताकि वो पिछले वाले ब्लॉक का सही हैश को
स्टोर कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक हैश को अपडेट करने में यहाँ पे काफ़ी समय लग सकता है एंड प्रैक्टिकली अगर बात करें तो इन हैशेस को चेंज करना पॉसिबल नहीं है. ओके, सो दिस इज़ द बेटर वे rather than the conventional in the terms of security. अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्या क्या बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट इज़ सिक्योर, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी है और सिक्योरिटी का रीजन है यहाँ पे 256 बिट हैश का एन्क्रिप्शन. ठीक है, तो फर्स्ट बेनिफिट इट इज़ सिक्योर. सेकंड, रिड्यूस्ड कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट भी कम होगी. जनरली हम बात करें जब इंटरनेशनल पेमेंट्स हो रहे होते हैं तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर पेमेंट करने पर मनी एक्सचेंज होती है लाइक फ्रॉम इंडियन रुपी टू डॉलर एंड दिस इज़ डन बाय द बैंक्स एंड बैंक अपना कमीशन भी लेती है. जबकि ब्लॉकचेन के अंदर ऐसा नहीं होता है. इट कैन कन्वर्ट टू मनी डायरेक्टली फ्रॉम बिटकॉइन टू बिटकॉइन, सो इट इज़ ईजी एंड द कॉस्ट इज़ रिड्यूस्ड. और अगर बेनिफिट्स की बात करें यहाँ पे तो बिटकॉइन का जो मार्केट है, बिटकॉइन जो हम बोल सकते हैं पूरा ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, ये क्रिप्टो करेंसी, उसका मार्केट काफ़ी बढ़ता जा रहा है दिनों दिन. स्टार्टिंग में जब यूज हुआ तो लगभग 60 डॉलर पर बिटकॉइन, और बीच में जब इसकी जो रेंज है वो बढ़ती गई तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर पर बिटकॉइन, यहाँ तक भी इसकी कन्वर्जन रेट पहुँची है. तो बिटकॉइन काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है और इसी से हम बोल सकते हैं कि इसमें बेनिफिट्स ज़्यादा हुए हैं और इसकी कॉस्ट कम ही है. ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंजिंग की कॉस्ट बिल्कुल नहीं होती है, ना के बराबर होती है. थर्ड हम बेनिफिट की बात करें टू ट्रेसेबिलिटी. अगर यहाँ पे हम चाहें कि किसी ब्लॉक को ट्रेस करना है, कौन सा ट्रांजैक्शन कब हुआ है, किसने किया है, किसको किया है, किस पर्पज़ से किया है, तो उसको ईजिली ट्रेस किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द यूनिक आइडेंटिफायर हैश. ओके, एंड द फोर्थ बेनिफिट इज़ इम्प्रूव्ड स्पीड एंड एफिशिएंसी. यहाँ पे स्पीड जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिडलवेयर बैंक्स की तरह काम नहीं कर रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, तो स्पीड यहाँ पे इम्प्रूव्ड मिलती है और एफिशिएंसी भी. तो ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और कौन कौन से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कहाँ किया जाता है. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जनरली क्रिप्टो करेंसीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. ये एक मेथड है, ये एक तरीका है जिसको कि क्रिप्टो करेंसीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम. ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट बिटकॉइन, एथेरियम, क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन technology. In the next video we'll discuss about other topics. So if you like this video, like, share and subscribe. Thank you.